بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس۔ آج کی ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 5 پریشر اینڈ ڈیفارمیشن ان سالڈز کی نومیریکل ایگزامپل سالو کریں گے۔ فرسٹ ایگزامپل ہے کامل سٹس آن اے سپرنگ چیئر ایز شون ان دی فگر۔ کامل ایک چیئر کے اوپر بیٹھتا ہے جو کہ ایک سپرنگ کے اوپر لگی ہوئی ہے، یہ آپ کو ڈائیگرام میں دکھائی بھی گئی ہے۔ If Kamil's weight is 50 kg and compresses the spring by about 10 centimeter، اگر کامل کا ویٹ 50 kg یعنی کہ یہ اس کا میس گمن ہے، اس کی مدد سے ہم اس کا ویٹ فائنڈ کریں گے، and compresses the spring by about 10 centimeter، تو جو سپرنگ ہے وہ 10 centimeter کمپریس کر جاتا ہے۔ When he sits on the chair find the spring constant of the chair spring، جو سپرنگ ہے اس کا سپرنگ کانسٹنٹ کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو چیئر کا سپرنگ کانسٹنٹ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے کہ یہاں پر ہم ہکس لا یوز کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں جو ڈیٹا گیون ہے اس اسٹیٹمنٹ میں وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ کامل سٹس آن اے سپرنگ چیئر اف کاملز ویٹ از 50 kg، 50 kg ساتھ آپ یونٹ دیکھیں تو یہ میس کا یونٹ ہے، اس وجہ سے اس کو میس سے ریپریزنٹ کرنا ہے۔ یہاں پر انہوں نے ویٹ لکھا ہے، اگر یہ نیوٹن میں ہوتا تو ویٹ ہوتا، یہ یونٹ ساتھ کیا لکھا ہوا ہے کے جی، اور کے جی کلو گرام یونٹ کس کا ہے، میس کا ہے۔ تو یہ ایم ہمیں گیون ہے 50 kg اینڈ کمپریسز دی سپرنگ بائی اباؤٹ 10 سینٹی میٹر۔ سپرنگ کمپریس ہوتا ہے کتنا، 10 سینٹی میٹر تک، یعنی کہ یہ ہمیں ایکس کی ویلیو گیون ہے 10 سینٹی میٹر، اور اس کو ہم ایس آئی یونٹ میں کنورٹ کر لیں گے۔ سینٹی میٹر کو میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے 100 سے ڈیوائڈ کریں گے، 0.1 میٹر آ جائے گا۔ When he sits on the chair find the spring constant، جب وہ چیئر کے اوپر بیٹھتا ہے تو سپرنگ کانسٹنٹ یعنی کہ کے کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے۔ تو اس کا سولوشن دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس سپرنگ کانسٹنٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہکس لا یوز کیا جاتا ہے، F = kx۔ جہاں پہ بھی سپرنگ کے اوپر فورس لگتی ہے اور وہ کمپریس یا اسٹریچ ہو جاتا ہے تو اس کیس میں ہکس لا اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے، F = kx۔ کے کیلکولیٹ کرنا ہے، کے ایکول ہو جائے گا F/x کے۔ اب اس کیس میں جو فورس ہوگی وہ کامل کے ویٹس کے ایکول ہوگی، یعنی کہ F ایکول ہوگا W کے اور W ایکول ہوتا ہے mg کے، تو mg/x ہمارے پاس آ جائے گا۔ اب ہمیں m کی ویلیو گیون ہے، g کی ویلیو معلوم ہے، g کیا ہے، گریویٹیشنل ایکسلریشن، اور x یہاں پر x کی ویلیو بھی دی گئی ہے۔ تو ویلیوز پٹ کرتے ہیں، k = m کی ویلیو 50 ہے، g کی ویلیو 9.8 ہوتی ہے، ڈیوائڈڈ بائی x کی ویلیو 0.1 ہے۔ اس کو سمپلیفائی کریں تو k آ جاتا ہے 4900 نیوٹن پر اسکوائر میٹر، یعنی کہ کامل جس چیئر کے اوپر بیٹھ رہا ہے اس چیئر کا سپرنگ کانسٹنٹ 4900 نیوٹن پر اسکوائر میٹر ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل نمبر 5.2 ہے، عبد الرحمان واز اسٹینڈنگ ایٹ دی اسٹیج آف اے ہال فار اے اسپیچ۔ عبد الرحمان ایک ہال کے اسٹیج کے اوپر کھڑا ہے اسپیچ کے لیے۔ What pressure does he apply on the stage if his 2 feet cover an area of 400 square centimeter؟ کتنا پریشر وہ ایگزرٹ کرے گا اسٹیج پہ اگر اس کے دونوں فیٹس کا جو ایریا ہے وہ 400 square centimeter ہو۔ If for a while he stands on the 1 foot، اگر وہ کچھ دیر کے لیے 1 فٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو what will be the pressure under the foot، تو اس کیس میں پریشر کتنا ہوگا، میس ہمیں دیا گیا ہے کامل کا 50 kg، عبد الرحمان کا جو میس ہے وہ 50 kg دیا گیا ہے۔ تو ہم اس کیس میں بھی ڈیٹا نوٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر بیسیکلی پریشر جو ہے اس کی بات کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ میس دیا گیا ہے، اور کس چیز کی بات کی گئی ہے، ایریا کی۔ تو ڈیٹا ہم سب سے پہلے نوٹ کرتے ہیں، عبد الرحمان واز اسٹینڈنگ ایٹ دی اسٹیج آف اے ہال فار اسپیچ، وٹ پریشر ڈز ہی اپلائی، تو پی ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے، P1 اس کو کہیں گے کیونکہ بی پارٹ میں ہم نے P2 بھی کیلکولیٹ کرنا ہے، تو P1 کیلکولیٹ کرنا ہے آن دی اسٹیج اف اٹس 2 feet cover an area of 400 square centimeter، اس کو ہم ایریا A1 کہہ دیں گے، A1 400 square centimeter یعنی کہ 400 into 10⁻⁻4، سینٹی کی ویلیو 10⁻⁻2 ہوتی ہے، 10⁻⁻2 کے اوپر اسکیئر ہے تو 10⁻⁻4 ہو جائے گا۔ جب یونٹ کے اوپر اسکیئر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے جو پریفکس ہے اس کے اوپر بھی یونٹ موجود، اس کے اوپر بھی اسکیئر موجود ہے۔
तो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल आ जाएगा 400 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या कहा गया, इफ फॉर ए व्हाइल ही स्टैंड्स ऑन 1 फुट। अब जब 1 फुट पे खड़ा होगा तो उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा। 2 फुट का एरिया 400 था तो 1 फुट का एरिया कितना होगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखें ना, आप अगर 2 पाँव पे खड़े होते हैं तो उस टाइम एरिया अगर 400 है तो 1 पाँव पे खड़े होंगे तो एरिया डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि 2 पाँव के केस में 2 पाँव का एरिया है और 1 पाँव के केस में 1 पाँव का एरिया है, तो वो दोनों की निस्बत हाफ हो जाएगा। इस वजह से अगर ये 400 इंटू 10 पावर माइनस 4 था तो सिंगल पाँव का 200 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट विल बी द प्रेशर अंडर दैट फुट, P2 कैलकुलेट करना होगा इस केस में। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। मास भी हमें गिवन है, टेक इज मास 50 kg। अब सोल्यूशन अगर आप देखें तो प्रेशर, एरिया की बात की गई है और फोर्स की बात की गई है। तो सोल्यूशन जो है इस केस में प्रेशर का फार्मूला अप्लाई होगा, P इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, P इक्वल टू F ओवर A। तो अब इस केस में जो फोर्स है वो अब्दुल रहमान के वेट की इक्वल है, तो फोर्स F की जगह पे W लिखेंगे, डिवाइडेड बाय A, वेट इक्वल होता है mg के, mg डिवाइडेड बाय A आ जाएगा। तो P1 इक्वल आ जाएगा mg ओवर A1। P इक्वल टू mg ओवर A आया था ना, तो P1 इक्वल टू mg ओवर A1, यानी कि P1 इक्वल टू m हमारे पास 50 है, g की वैल्यू 9.8 है, A1 की वैल्यू हमारे पास 400 इंटू 10 पावर माइनस 4 है। इसको डिवाइड करेंगे तो P1 आ जाएगा 12/250 पास्कल। ठीक है, और अगर हम इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना चाहें, पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो 10 की पावर 3 आ जाएगी, ये हमारे पास 12.250 किलो पास्कल आ जाएगा। इसी तरह हम P2 कैलकुलेट करने के लिए इसी टर्म में P2 और A2 कर देंगे, यानी कि P2 इक्वल टू mg ओवर A2 आ जाएगा। P2 इक्वल होगा, m की वैल्यू 50 है, g की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय A2 हमारे पास 200 इंटू 10 पावर माइनस 4 है, तो P2 इक्वल आ जाता है 24500 पास्कल, यानी कि P2 हमारे पास आ जाएगा 24.5 किलो पास्कल। पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर 3 हो गया था, 10 पावर 3 किलो की इक्वल होता है, तो 24.5 किलो पास्कल आ जाता है। तो यहाँ से आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर वो आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट ऐड कर दें कि आपसे ये पूछें कि किस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आपने ये देखा है कि जब वो दोनों पाँव पे खड़ा था तो प्रेशर कम था, और जब एक पाँव पे खड़ा हुआ तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। क्योंकि एरिया डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है, वो हम इस फार्मूले की मदद से देख भी सकते हैं कि एरिया प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5.3 है। ए सबमरीन वाज मूविंग इन पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन। सबसे बड़ा और सबसे गहरा समंदर है पैसिफिक ओशन, उसमें सबमरीन जो है वो मूव कर रही है, और कितनी डेप्थ पे है, 8.5 किलोमीटर डेप्थ पे। हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड अपॉन द सबमरीन इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कितना प्रेशर सबमरीन पे एक्सर्ट होगा अगर वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो। तो हम सबसे पहले इसका डाटा नोट करते हैं। सबमरीन मूव कर रही है, डेप्थ हमें गिवन है, h की वैल्यू 8.5 किलोमीटर, इसको हम SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है, तो ये 8.5 इंटू 10 पावर 3 मीटर आ जाएगा। हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड, P हमने कैलकुलेट करना है। इफ डेंसिटी ऑफ द वाटर रो इक्वल आ जाएगा 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, डेंसिटी वाटर की 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है उस केस में प्रेशर इक्वल होता है P इक्वल टू रो जी एच। तो रो की वैल्यू हमें दी गई है, G की वैल्यू हमें मालूम है 9.8 होती है, और H की वैल्यू दी गई है, तो P इक्वल आ जाएगा, रो की वैल्यू 1000 हमें गिवन है, G की वैल्यू 9.8 होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और H की वैल्यू हमें गिवन है 8.5 इंटू 10 पावर 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा 8335 टाइम्स 0 पास्कल। यहां से अगर हम पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करें तो इसका मतलब ये है, ये 7 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करेगा,
जितने डिजिट पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करता है उतने डिजिट 10 की पावर हम लिखते होते हैं, तो ये 8.33 इंटू 10⁷ पास्कल आ जाएगा। तो 8.5 किलोमीटर की गहराई में सबमरीन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू 8.33 इंटू 10⁷ पास्कल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5.4 है, a hydraulic lift has 0.002 meter square narrow cylinder area while 0.9 meter square wider cylinder area। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसका हमें नैरो सिलेंडर एरिया यानी कि स्मॉल पिस्टन है उसका एरिया गिवन है, और वाइडर सिलेंडर एरिया यानी कि लार्ज पिस्टन है उसका एरिया गिवन है। हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द नैरो सिलेंडर इफ कार वेइंग 1800 kg इज टू बी लिफ्टेड। कितना प्रेशर जो है, कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी नैरो सिलेंडर पे अगर कार का वेट 1800 kg हो। तो डाटा हमारे पास है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज नैरो सिलेंडर के लिए हम 1 यूज करेंगे सब्सक्रिप्ट में, और वाइडर सिलेंडर के लिए 2 यूज करेंगे। तो नैरो सिलेंडर का एरिया है तो इसको A1 लिखेंगे 0.002 मीटर स्क्वायर, और वाइडर सिलेंडर के लिए A2 यूज करेंगे, एरिया हमारे पास A2.9 मीटर स्क्वायर है। हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट नैरो सिलेंडर, नैरो सिलेंडर की बात की जा रही है, नैरो के लिए हमने 1 यूज किया था तो फोर्स के साथ 1 लगेगा यानी कि F1 हमने कैलकुलेट करना है। इफ कार वेइंग 1800 kg टू बी लिफ्टेड, अब ये दूसरे सिलेंडर पे होगी, वाइडर सिलेंडर के ऊपर कार मौजूद है, वाइडर के लिए 2 यूज कर रहे थे तो ये M2 है हमारे पास 1800 kg। यहाँ पे वेइंग लिखा हुआ है लेकिन साथ यूनिट क्या है, kg। आपने यूनिट को देखते हुए इसको नोट करना होता है, तो इसका यूनिट kg है, इस वजह से ये इसका मैस है 1800 kg। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो नैरो सिलेंडर के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो इक्वल होगा वाइडर सिलेंडर पे अप्लाई होने वाले प्रेशर के, ठीक है, क्योंकि प्रेशर इक्वली एक्सर्ट होता है पास्कल लॉ के मुताबिक। तो हम जो नैरो सिलेंडर पे प्रेशर अप्लाई करेंगे वही प्रेशर हमें वाइडर सिलेंडर पे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि F1 ओवर A1 इक्वल टू F2 ओवर A2। प्रेशर इक्वल होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया एट नैरो सिलेंडर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एट वाइडर सिलेंडर। F1 कैलकुलेट करना है, F1 कैलकुलेट करने के लिए A1 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1 इक्वल टू F2 A1 ओवर A2। अब इसमें जो M2 है वो मैस गिवन है, F2 की जगह पे हम F2 जहाँ पर जो फोर्स है वो उस कार के वेट के इक्वल होगी, और वेट किसकी मदद से हम फाइंड करेंगे, उसके मैस की मदद से, यानी कि फोर्स जहाँ पर उसके वेट के इक्वल है और वेट इक्वल होता है mg के, तो F2 की जगह पे m2g आ जाएगा इंटू A1 ओवर A2। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, F1 इक्वल आ जाएगा, m2 की वैल्यू 1800 गिवन है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, A1 की वैल्यू 0.002 गिवन है और A2 की वैल्यू 0.9 गिवन है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो F1 जो फोर्स है वो 39.2 न्यूटन आ जाती है, यानी कि जो हमारे पास नैरो सिलेंडर था वहां पे हम 39.2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो वाइडर सिलेंडर पे मौजूद कार जिसका मैस 1800 kg है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी। यहां तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।